of my lecture is creating awareness about G20 presidency. Being a teacher of political science, G20 is a very close subject to my heart. Then of course, National Education Policy 2020 and Fundamental Literacy and Numeracy. Talking about G20, you know that India got G20 presidency in December 2022 and it will last till 30th November 2023. There are, of course, as everybody told you, that there are 19 countries and one European Union which is part of G20. Why G20 was made, that was also mentioned by Shri Minister Pandey, that in 1999, after globalization, India was going through, not India, many other countries, Asian countries were going through a lot of economic crisis, and at that time it was thought that developing countries should also come together on a platform so that they can collaborate, they can think together so that they can solve their economic crisis. It was in the line of G7, that was group of 7, which is a group of developed country, you must be knowing, and after Russia came to being, it became G8. So G20 was formed with this idea in mind. But in 2008, again an economic crisis happened in America. That was subprime crisis. You must be knowing about it, subprime crisis, which was related to real estate market. Too many bad loans were given, and the result was that many banks failed in America, and subprime crisis happened. And so at that time, G20 was elevated to the level of heads of state, and that was the time it took its present form, and also its agenda was extended, expanded, and like any other organization like NAM, it also expanded its agenda, and it included all the aspects of human life, everything which impacted human development across the world. So India assumed G20 presidency, and we had got one whole year to showcase what we want to show the world about India. आपको मालूम है कि भारत के पास कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, लेकिन हम अभी तक मेन स्ट्रीम में नहीं आए थे. We were at the margins, and that is why we could not become a big power. अगर हमें बड़ी शक्ति बनना है, then what we have to do? We have to come in the mainstream. और mainstream में आने के लिए हमें क्या करना है? हमको action लेना है. We have to act, not only speak. आप अगर अपने पड़ोसी देशों को देखें तो नेपाल, बांग्लादेश, they are more trustful of China. Why? क्यों? क्योंकि इंडिया बहुत सारी बातें तो करता है लेकिन उनको पूरा कर नहीं पाता है. चाइना एक्ट जल्दी करता है. तो अभी हमें क्या जरूरत है कि इफ वी वांट टू बिकम सुपर पावर, बिकॉज हम कहते ही हैं कि इंडिया, भारत बहुत जल्दी एक महाशक्ति बनने वाला है, वर्ल्ड पावर बनने वाला है. तो फॉर दैट व्हाट वी नीड इज वी हैव टू शोकेस आवर कैपेबिलिटीज. एंड हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी बहुत विजनरी है और उन्होंने भारत को कहां से कहां तक पहुंचा दिया. और इसलिए हमारा जो थीम है, जैसा सभी ने कहा, आपको मालूम है, इट इज वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर. एंड पेंडेमिक हैज प्रूव्ड दिस, दैट व्हेन वी थिंक लाइक दिस, ओनली देन वी कैन सर्वाइव. अभी हमने 5 जून को वर्ल्ड एनवायरमेंट डे बनाया, कल हमने वर्ल्ड ओशन डे बनाया, और बार बार हमें ये बताया जा रहा है कि जिस तरीके से हम बढ़ रहे हैं, क्लाइमेट चेंज की ओर जा रहे हैं, बाय 2030 एंटार्क्टिक सी में जो भी जितनी भी बर्फ है वो पिघल जाएगी. Then what will happen to Mumbai or what will happen to Maldives? So what we need is lifestyle for environment. तो मोदी जी ने जो ये 2-3 जो स्लोगन्स लिए, जो शब्द लिए,
ये पूरे विश्व को अपील करते हैं, सबके लिए जरूरी है, सबके सर्वाइवल के लिए जरूरी है, बिकॉज वी आर नॉट लिविंग दिस अर्थ, बट अभी हम जहाँ छोड़ के जाने नहीं वाले हैं, वी आर नॉट गोइंग टू मून और वी आर नॉट गोइंग टू मार्स, अभी हमको वहां पर जमीन नहीं मिली है कि हम वहां पर जाकर बस जाएंगे। देन इंडिया एज द G20 president highlights a range of issues in diverse sectors, including education, energy, agriculture, trade, digital economy, health and environment, as well as employment, tourism, anti-corruption and women's empowerment. तो इंडिया का जो फोकस है वो डाइवर्स सेक्टर्स पर है। और आपको याद होगा जो हमारे बनारस में जो 100th मीटिंग हुई थी G20 की, वो एग्रीकल्चर जो मिनिस्टर्स थे उनकी हुई थी, MACS, और जिसमें हमने मेज के बारे में, जिसमें हमने मिलेट्स के बारे में बात की थी, मोटे अनाज के बारे में बात की थी कि कैसे हमें उन्हें अपने फूड का हिस्सा बनाना चाहिए। और ये बड़ी खास बात थी बनारस के लिए कि 100वीं बैठक थी ये G20 की भारत में, और बनारस ही वो सिटी है यूपी के अंदर जहाँ पे 4 बैठकें होनी है। एक हो चुकी, एक अभी 11 से 13 जून के बीच में होने वाली है, जिस पर SDGs के बारे में बात की जाएगी, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स G20 कंट्रीज अपने लिए चुनी है उन्होंने, और आगे उस पर प्लान कैसे करना है, कोलैबोरेट कैसे करना है, जिससे हम उसको आगे बढ़ा सके। इसके बाद अगस्त में 2 बैठकें होंगी, तो कुल जमा 4 बैठकें बनारस में होने वाली है। ये हमारे लिए एक प्रिविलेज है क्योंकि मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इस वजह से, वरना लखनऊ में नहीं है ऐसा। इसके अलावा जब हम G20 के वेरियस सेक्टर्स को देखते हैं तो क्या दिखाई देता है कि वी आर ऑल इम्पैक्टेड बाय इट। इसमें वुमेन्स एम्पावरमेंट की बात भी है, डिजिटल इकोनॉमी की भी बात है, एंटी करप्शन की भी बात है, और इस वजह से क्या माना जाता है कि एवरी इंडियन शुड बी अ पार्ट ऑफ इट, और इसीलिए जन भागीदारी। जब हम खुद किसी काम को करते हैं, जब हमें इन्वॉल्व किया जाता है, देन वी अंडरस्टैंड दैट थिंग मोर। आप सब टीचर्स हैं, आपको तो पता ही है कि जब हम बच्चों से कोई एक्टिविटी करवाते हैं तो बच्चे ज्यादा अच्छी तरह से समझते हैं, बनिस्बत के कि हमने उनको पढ़ा दिया। जब उनसे कहते हैं क्लास में एक ग्रुप बनाकर कुछ इनैक्ट करने के लिए, लाइक G20 का ही अगर हमने उनसे कहा कि यू हैव टू इनैक्ट अ सीन ऑफ, लाइक आप कह सकते हैं उन्हें ट्रोइका के बारे में बताने के लिए। ट्रोइका के बारे में भी अभी बताया गया कि जो हमसे पहले जिसने होस्ट किया था G20 को, हम और हमारे बाद जिन्हें होस्ट करना है, ये तीनों कंट्रीज, दैट इज IIB, इंडोनेशिया, इंडिया एंड ब्राजील। याद करने में हम लोग एक्रोनिम्स यूज करते हैं ना, तो IIB। तो ये तीनों कंट्रीज को आपको ट्रोइका को आपको बताना है, तो हमारे जो बच्चे हैं वो ज्यादा अच्छी तरह से इसको समझ पाएंगे कि व्हाट इज ट्रोइका एंड व्हाट इज इट्स रोल। व्हाट इज इट्स रोल? इंडिया में अगर G20 की बैठक हो रही है तो इंडोनेशिया और ब्राजील हेल्प करेंगे, असिस्ट करेंगे इंडिया को। This is why Troika is there, because G20, as you know, has no secretariat, has no permanent office. जो कंट्री होस्ट करती है उसको ही ये सारे अरेंजमेंट करने होते हैं। Then India's G20 presidency highlights the role of innovation, entrepreneurship and startup to achieve the goals. What are the goals? The goals are to make a world where ह्यूमन डेवलपमेंट इज एट फोकस, जहां पर हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें कि अभी तक हम लोग जीडीपी वगैरह की बात करते आए हैं, लेकिन अभी हमें एचडीआई पर फोकस करना है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करनी है। और अगर हमें उस गोल को हासिल करना है तो उसके लिए हमें, आज आप देखते हैं कि इनोवेशन पर बहुत जोर दिया जाता है, और हम ये देखते हैं कि इंडिया अभी इनोवेशन में पीछे है। अभी हम एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन, रिसर्च, स्टार्टअप, इसमें अभी हम पीछे हैं और इस पर आज ज्यादा फोकस हो रहा है। यूनिवर्सिटीज भी अपने यहाँ इनोवेशन सेंटर्स बना रही हैं, जहाँ पर नए आइडियाज के लिए
ग्रांट्स दी जा रही है। स्टार्टअप्स के बारे में आपने सुना ही है कि किस तरीके से एंजल इन्वेस्टर्स आगे आ रहे हैं जो इन स्टार्टअप्स को फाइनेंस कर रहे हैं, जिससे हम नौकरी खोजने नहीं जाए बल्कि हम एम्प्लॉयबिलिटी क्रिएट करने वाले बने। इसके अलावा मेन फोकस फॉर इंडिया इज ऑन रिसर्च, इनोवेशन, स्टार्टअप अचीवमेंट एंड पोटेंशियल and how India can contribute to the G20 Sustainable Development Goal. Now, we have to connect education to G20. India has this opportunity, India has this platform of G20 to showcase before the world what are its ambitions, what are its ideas, and one of these ideas is about education.